Good day, students. In the last lecture, I have told you that there are two types of normal forms. One is Chomsky normal form and the second one is Grebeck normal form. Then in the last lecture, I have also discussed how to convert a context-free grammar into an equivalent Chomsky normal form. In this lecture, we will discuss how to convert the grammar into Grebeck normal form. First, what is Grebeck normal form? Then, how the context-free grammar can be converted into an equivalent Grebeck normal form. First, what is a Grebeck normal form? In a Grebeck normal form, all the productions have the form A drives a terminal followed by 0 or more variables. All the productions have the form A drives terminal followed by 0 or more variables. It means every production's right hand side must start with a terminal followed by either no variables or any number of variables, that is v1, v2, vk, where k is greater than equal to 0. Here a is a terminal or symbol and v1, v2 up to vk are variables. Examples. So this production is in Grebeck normal form. In the right hand side, the first one is a terminal followed by two variables. These three are also in Grebeck normal form. First terminal followed by a variable, terminal followed by a variable, simply terminals. And this is also in Grebeck normal form. A variable drives a terminal. Now, the grammars which are not the productions which are not in Grebeck normal form. One terminal, second terminal, variable, then terminal. So it is not in Grebeck normal form. A variable derives two terminals. It is also not in Grebeck normal form. Now, the definition of Grebeck normal form. A context-free grammar without upsilon. It means if there are null productions, we have to remove those null productions. So, a context-free grammar without upsilon is in Grebeck normal form if all productions are of the form A drives A alpha, A drives small a alpha, where A is a terminal and alpha is a string of 0 or more variables. Means a terminal is followed by either no variable or one or more than one variables. So this is the definition of Grebeck normal form. Now, what are the steps to transform a context-free grammar to an equivalent Grebeck normal form? So first step is we have to check in the grammar whether there are any null production. If there are any null production, we have to remove those null productions. Now, if there are unit productions or after removing null production, the unit production produces, then we have to remove unit productions. If there is no such unit production, just leave this step. The third one is we have to remove useless symbols or productions, if any. So after removing null production, unit production produces. After removing unit productions, useless symbols or productions generates. So we have to remove these. If there are no such useless symbols, just leave this step. So these three steps are optional. If these three things are available in the grammar, you have to remove these three things. Now the fourth one. Remove excessive terminals from productions by replacing all terminals except that are at first position on right hand side with non-terminals by introducing new non-terminals for each new terminal. तो सबसे पहले जितने भी excessive terminals हैं राइट हैंड साइड में जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उन सबको रिमूव कर दीजिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंगली आप क्या कर दीजिए एक एक
नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर दीजिए। नेक्स्ट, रिमूव ऑल लेफ्ट रिकर्शन इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट विदाउट एडिंग अपसाइड। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करनी है। ये मैं बताऊंगा आपको, या स्टेप्स बताएंगे कि लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करनी है, और अपसाइलन ऐड नहीं होने चाहिए इस जब आप लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव कर रहे हो। देन मेक सब्स्टिट्यूशंस टू ट्रांसफॉर्म द ग्रामर इनटू प्रॉपर फॉर्म। फिर आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है और ग्रामर में से ग्रामर को प्रॉपर फॉर्मेट में ले आना है। चलिए देखते हैं जी एग्जाम्पल के साथ, ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है। A1 drives A2 A3, A2 drives A3 A1 और B, A3 drives A1 A2 और A। ये हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है। हमने इसको ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। नाउ सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड का जो पहला वेरिएबल है उसके सबस्क्रिप्ट को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल की सबस्क्रिप्ट के साथ कंपेयर करना। इस हर एक प्रोडक्शन के अंदर इस सबस्क्रिप्ट को इसके साथ कंपेयर करना, इस सबस्क्रिप्ट को इसके साथ कंपेयर करना। सो राइट हैंड साइड का पहला वेरिएबल का सबस्क्रिप्ट और लेफ्ट हैंड साइड का तो एक ही होता है उसका सबस्क्रिप्ट। इधर भी अगर यहाँ भी होता तो ये भी हम कंपेयर करते। सो अगर लेफ्ट वाला सबस्क्रिप्ट छोटा है राइट वाले सबस्क्रिप्ट से तो आपने उसको कंसिडरेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ उस प्रोडक्शन की कंसिडरेशन करनी है जिसका लेफ्ट वाला बड़ा हो और राइट वाला छोटा। सो पहले केस में 1 छोटा है 2 से, सो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट में 2 छोटा है 3 से, इसमें भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए इशू है 3 बड़ा है 1 से, पहले वाले वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट से लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल का सबस्क्रिप्ट बड़ा है। सो 3 बड़ा है 1 से। तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है, इस A1 की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, A2 A3 सब्स्टिट्यूट कर देनी। सो ऑर्डरिंग द रूल्स ओनली A3 रूल, मैंने आपको बताया कि A3 रूल हमारे उसको वायलेट कर रहा है, ऑर्डरिंग को वायलेट कर रहा है। सो A3 रूल्स को हमने चेंज करना जरूरी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, A3 के अंदर A3 वाले रूल के अंदर A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो A1 की वैल्यू क्या है, A2 A3। तो आप यहाँ पे देख लीजिए A3 ड्राइव्स A2 A3 और ये इसका A2 सच मैंने ऐसे ही लिख दिया है, और ये जो A है वो A का A ऐसे। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A1, जब मैंने A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। नाउ अब A3 फिर जब कंपेयर किया 3 बड़ा है 2 से, जबकि ये छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, फिर A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब A2 की 2 वैल्यूज है, एक A3 A1 है और एक B है। सो मैं दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा किसके अंदर, ये ऊपर वाली प्रोडक्शन के अंदर। सो सबसे पहले मैंने A3 A1 सब्स्टिट्यूट किया किसकी जगह पे, अब आप ध्यान से देखिए, इस A2 की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, सब जगह नहीं करना, सिर्फ पहली जगह पे करना। सो A3 A1 A3 A2 ये हो गया। फिर B सब्स्टिट्यूट किया, B A3 A2, ठीक होगी जी बात, और A का A ऐसे लिखा गया। तो ये आपको समझ आ गई, ये सब्स्टिट्यूशन है। तो जब हमने किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, A2 की वैल्यू, सब आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A2 हमारे पास ये, अब ये इक्वल आ गया है। ठीक है जी, जैसे अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इक्वल आ जाएगा। जब इक्वल आ जाए तो हमने काम रोक देना, स्टॉप कर देना, और फिर हम अगला स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। नाउ अब इधर भी A3 आ रहा है, A3 आ रहा है, यानी कि ये लेफ्ट रिकर्शन होगा। जब सेम वेरिएबल लेफ्ट साइड में आ जाए किसी प्रोडक्शन रूल के तो उसको हम लेफ्ट रिकर्शन बोलते हैं। लेफ्ट रिकर्सिव होगा, यानी कि A3 को लेफ्ट 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 में बार बार रिप्लेस किया। तो इसको हमने रिमूव कर, उसके लिए क्या मेथड है, हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे B3 इन प्लेस ऑफ दिस प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन की जगह पे हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक होगी जी बात, ये प्रोडक्शन है। बाकी वाली तो प्रोडक्शन हमारी प्रॉपर फॉर्मेट में, ये देख लीजिए, एक टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, अकेला टर्मिनल, तो ये हमारी प्रॉपर फॉर्मेट में, तो कोई इशू नहीं। बट
यहाँ पे A3 में क्या प्रॉब्लम कर रहा है हमारे को, ये वाली प्रोडक्शन प्रॉब्लम कर रही है जिसमें पहले वाले का वेरी सब्सक्रिप्ट सेम, तो इसको हमने खत्म करना है और इसकी जगह पे दो नई प्रोडक्शंस प्रोड्यूस करनी है एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोडक्शन रूल्स, और नए प्रोडक्शन रूल प्रोड्यूस करने हैं। देख लीजिए क्या क्या होंगे। सबसे पहले B3, तो B3 हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, तो B3 के प्रोडक्शन रूल होंगे B3 ड्राइव्स, इस A3 को आगे से हटा दीजिए, A1 A3 A2 A1 A3 A2, ठीक है जी। आगे से हमने A3 हटा दिया है B3 में जब आपने लगाया। फिर एक बार लिखना है आपने A1 A3 A2 और इस B3 को क्या लगा देना है, पीछे लगा देना है। B3 को क्या बना, इसको लेफ्ट रिकर्सिव से क्या बना देना है, राइट रिकर्सिव बना देना है। सो एक बार प्रोडक्शन A3 हटा के लिखनी है और एक बार A3 तो हटाना ही हटाना है और उसके पीछे क्या लगा देना है, B3 लगा देना। अब जो बाकी दो प्रोडक्शन बची हुई हैं A3 की, बाकी दो प्रोडक्शन ऐसे की ऐसे लिखनी है और फिर इनको दोबारा लिखना है और उनके पीछे क्या लगाना है, B3। उनके पीछे क्या लगाना है जी, B3। तो आप ध्यान से देखिए, A3 हमारी प्रॉपर फॉर्मेट में हो गई है, A3 प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया है। टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल्स, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल्स एंड टर्मिनल फॉलोड बाय अ वेरिएबल, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में हो गई। सो ऑल द A3 रूल स्टार्ट विद टर्मिनल, वी यूज दैम। अब अगर मैं A3 की वैल्यू जगह जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। So all A3 rules start with a terminal. We use them to substitute first in the right hand side of A1 and A2 and then B3 to obtain the grammar in GNL. So हम इस A3 हमारी प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई। अब इस A3 को मैं A2 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक होगी जी बात। तो ये A2 प्रॉपर फॉर्मेट में चला जाएगा। फिर जो A2 की प्रोडक्शंस आएंगी उसको मैं A1 में कर दूंगा यहाँ पे, तो ये भी प्रॉपर फॉर्मेट में चली जाएगी, ठीक है जी। आगे आगे फॉर्मेट पीछे करने हैं, वो लास्ट में नहीं करनी। और फिर B3 में भी B3 को फॉर्मेट करना है। B3 को फॉर्मेट करने के लिए मेरे को A1 फॉर्मेटेड में चाहिए था, तो A1 की वैल्यू मैं यहाँ बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक होगी जी बात। चलिए देखते हैं क्या होगा। सो रिजल्टेंट ग्रामर इज, तो हमारी रिजल्टेंट ग्रामर क्या बनेगी, और देखिए। तो सबसे पहले मैंने A3 की ऐसे ही लिख ली, A3 ड्राइव्स B A3 A2 B3, ये मैंने ऐसे ही लिखी है, ठीक है जी। ये रहा B A3 A2 B3, फिर B A3 A2 ये मैंने लिख लिया, फिर A B3 लिख लिया और आखिर में अकेला A लिख लिया। इनको रीअरेंज कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी अरेंज करने की, तो ये A3 हमारी प्रॉपर फॉर्मेट में है। अब A3 की वैल्यू हमने A2 में सब्स्टिट्यूट कर दी, A2 में सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक हो गई जी बात। यानी A2 में तो A3 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि सारी प्रोडक्शन के पीछे क्या लगा के लिखना है, A1 लगा के लिखना है और एक B और ऐड करना है। सो A2 के अंदर सबसे पहले हमने इसके पीछे B A3 A2 B3 और उसके पीछे A1 लगा दिया, फिर B A3 A2 उसके पीछे A1 लगा दिया, फिर A B3 उसके पीछे A1 लगा दिया, फिर A A1 A के पीछे A1 लगा दिया और ये B ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। तो A2 भी प्रॉपर फॉर्मेट में हो गई, सारी प्रोडक्शन टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल्स के साथ बन रही हैं। फिर अब ये वैल्यू A2 की आपने A1 में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सबके पीछे क्या लगा के लिखना है आपने, A3 लगा के लिखना है। तो लिखिए B A3 A2 B3 A1 और उसके पीछे A3 लिख दिया, B A3 A2 A1 और उसके पीछे A3 लिख दिया, A B3 A1 और उसके पीछे A3 लिख दिया, A A1 और उसके पीछे A3 लिख दिया और B उसके पीछे A3 लिख दिया, क्योंकि A2 की वैल्यू सबसे तो सबके पीछे क्या लिखना है आपने, BA3 लिखना है। तो A1 भी फॉर्मेट में चला गया। अब आई बारी B3 की, क्योंकि B3 भी हमारी ग्रामर का हिस्सा बन चुका है। तो अब B3 की दो प्रोडक्शन है, इन सब के साथ अब A1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और A1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए सब B3 पहले, अब पहली बार में आप इसने B3 वाली लिख रहा है, तो A3 A2 B3 सबके पीछे लगा के लिखना है A2 A3 A2 B3 A3 A2 B3। So B A3 A2 B3 A1 A3 A3 A2 B3, ठीक होगी जी बात। ये
इस वाली पे लिख दिया। अब इधर वाली लिखनी है तो आपने A3 A2 लिखना था उसके पीछे, सेम प्रोडक्शन के पीछे A3 A2। सो B A3 A2 B3 A1 A3 A1 A3 और ये लास्ट वाले उसके A3 और A2। ठीक होगी जी बात। चलिए, तो ये हमारी पहली वाली हमने कंप्लीट कर ली। पहली वाली के पीछे एक बार A3 A2 लगा के लिखा, एक बार A3 A2 B3 लिखा। अब दूसरी वाली पे देखते हैं, ये वाली B A3 A2 A1 A3। ठीक है जी। चलिए, ये कौन सा ले रहा है ये, इसमें लेना। अच्छा, ये इस वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसमें। ठीक है जी, ये वाली किसी को भी पहले कर लीजिए, किसी को बाद कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो बी A3 A3 A2 B3। ठीक होगी जी बात। ये B3 वाली में पुट कर दिया। अब आगे वाली में करेंगे B A3 A3 A2। ठीक होगी जी बात। अब फिर इस वाली को कर रहा है ये, इस वाली के लिए आ गया B A3 A2 A1 A3। फिर उसके पीछे क्या करना है, A3 A2 B3। सो A3 A2 B3 लगा दिया। अब क्या लगाना है इसके पीछे, A3 A2। सो B A3 A2 A1 A3 और उसके पीछे क्या लगा दिया, A3 A2 लगा दिया। तो ये भी हमारी सब्स्टिट्यूट हो गई वैल्यू। अब दो रह गई, एक ये A वाली रह गई, एक ये। देखते हैं पहली कौन सी करता है, A B3 वाली कर रहा है, पहले ये वाली कर रहा है। सो A B3 A1 A3 और A3 A2 B3 लिखना था। सो A3 A3 A2 B3। ठीक होगी जी बात। फिर इसके पीछे अब आपने A3 A2 लिखना था, A B3 A1 A3 और A3 A2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। अब लास्ट वाला रह गया हमारे पास। ठीक होगी जी बात, A1 A3 A1 A3। सो A1 A3 A3 A2 B3 एंड A1 A3 A3 A2। ठीक होगी जी बात। तो ये हमारी ग्रामर किसमें, अब आप चेक कर लीजिए, सारी की सारी प्रोडक्शंस प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई हैं, यानी कि ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक होगी जी बात। तो दिस इज द फाइनल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो ये हमारे पास ग्रामर दी हुई है। अब आपको जी यहाँ तो सबस्क्रिप्ट नहीं है, तो हमें वेरिएबल्स पहले सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को रीनेम कर लेते हैं, स्टार्टिंग से लग जाते हैं। एस को A1 कहा, एक्स को A2 कहा, ए को A3 कहा, बी को A4 कहा। ठीक होगी जी बात। और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ऐसे, जहाँ पे एक्स लिखा वहाँ A2 लिख दो, जहाँ एस लिखा वहाँ A1 लिख दो, जहाँ ए लिखा वहाँ A3 लिख दो, जहाँ बी लिखा वहाँ A4 लिख दो। तो ये हमारी ग्रामर ऊपर वाली इस फॉर्मेट में आ रही। अब आपने कंपेयर करना है, 1 को 2 के साथ कंपेयर किया तो लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 4 के साथ कंपेयर किया, लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे किया यहाँ 4 को 1 के साथ किया, यहाँ दिक्कत है क्योंकि 4 बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया। तो हमने पहला स्टेप लेना है, हमने सब्सक्रिप्ट को कंपेयर किया, लेफ्ट और राइट वेरिएबल्स को। सो 4 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 1 से, तो हमने क्या करना, इस A1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। A1 की कितनी वैल्यूज है, A1 की 2 वैल्यूज है, ये दोनों मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है और सबके पीछे A4 लगाना है। तो देखिए क्या करना, A2 A3 A2 A3 A1 की वैल्यू है और उसके पीछे लगा दिया A4, और ये दूसरा A4 A4 है, तो A4 A4 और उसके पीछे लगा दिया A4, और ये B को मैंने ऐसे लिखा। ठीक होगी जी बात। फिर दोबारा कंपेयर किया, 4 की वैल्यू अब भी बड़ी है 2 से, 4 की वैल्यू अब भी बड़ी है 2 से, तो अब मैं A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। A2 की वैल्यू सिंपल टर्मिनल है, तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक होगी जी बात। दूसरे के साथ कंपेयर किया, 4 की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई, तो हमारी यहाँ पे हमने रोक देना है, क्योंकि जब इक्वल आ जाए तो अब रोक देना है आपने। ठीक होगी जी बात। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये प्रोडक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में है, ये प्रोडक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में है, ये वाली प्रोडक्शन फॉर्मेट में नहीं है। अगर ये फॉर्मेट में आ जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ सेकंड स्टेप, सो इंट्रोड्यूस ए न्यू वेरिएबल z। वहाँ पे मैंने B3 किया था, यहाँ z आपकी मर्जी है, कुछ भी करना था।
in place of the production A4 drives A4 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 and produce two new productions Z drives A4 A4 यानी कि एक बार ये पहले वाला हटा दिया हमने, ठीक होगी जी बात, एंड A4 A4 Z A4 A4 Z एक Z उसके पीछे लगाना है, लेफ्ट रिकर्सिव से राइट रिकर्सिव, Z drives A4 A4 and A4 A4 Z. So A4 production becomes, तो A4 production क्या बन जाएंगी आपके पास, A4 drives B A3 A4 A4 की प्रोडक्शन क्या बन जाएंगी, A4 की प्रोडक्शन आप देख लीजिए, A4 ये है मेरे पास A4 की, ठीक है जी, B A3 A4 B A3 A4 फिर A4 ड्राइव्स B, ठीक है जी, फिर इन दोनों के पीछे Z लगा के लिखना है B A3 A4 Z एंड B Z, ठीक होगी जी बात, और Z की मेरी प्रोडक्शन है ही है A4 A4 एंड A4 A4 Z जो हमने इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे। सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप क्या है, अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू करनी है आपने A4 की वैल्यू आपने क्या करनी है जी, A4 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। सो अब A4 की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट होगी, A4 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होनी है, ठीक होगी जी, A1 के यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक होगी जी बात, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। B की वैल्यू हम यहाँ सब A2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्रॉपर फॉर्मेट में, चलिए देखते हैं, ठीक है जी। सो जब यहाँ करोगे तो BA3 बन गया, सो BA3 बन गया, A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब फिर अब A4 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, BA3 A4 A4 सबके पीछे A4 A4 लगा के लिखना है, B उसके पीछे A4 B A3 A4 Z A4 BZ A4, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई और A1 भी हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है जी। यहाँ A4 प्रॉपर फॉर्मेट में था तो A4 की वैल्यू A1 में सब्स्टिट्यूट की और A2 की वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में चला गया। अब Z रह गया, Z में A4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Z भी हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में चला जाएगा। Z में B A3 A4 उसके पीछे A4 लिखना था, A4 फिर B A4 इसके पीछे A4 लिखना था, फिर B A3 A4 Z A4 फिर BZ A4, ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट अब आपने A4 Z लिखना है सबके पीछे, B A3 A4 A4 Z, ठीक है, A4 Z लिखना है आपने, B A4 Z ये Z डाल लेना जी, रह गया मिसिंग हो गया, ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट A4 सॉरी B A3 A4 या हाँ B A3 A4 A4 Z, ठीक है, फिर B A4 Z, ठीक है जी, फिर B A3 A4 Z A4 इसके पीछे Z लगा लेना एंड द लास्ट वन इज BZ A4 Z, ठीक होगी बात। अदरवाइज ये सेम टू सेम हो गई, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो ये सबके पीछे Z लगा लीजिए। अब चेक कर लीजिए, ये भी हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में चला गया, ये भी हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में चला गया और ये भी हमारा प्रॉपर फॉर्मेट, सारी प्रोडक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में हो गई, ठीक है जी। A2 को यहाँ से लिख लेना है, A3 को यहाँ से लिख लेना है, ग्रामर हमारी ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये आप चेक कर लीजिए, ये प्रोडक्शन जनरेट होती जा रही हैं जो कि प्रॉपर फॉर्मेट में है। इसके पीछे आपने Z लिखना है, इसके पीछे आपने Z लिखना है, इसके पीछे आपने Z लिखना है, इसके पीछे आपने Z लिखना है। सो दिस इज इन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।